Okay, good morning everybody. Welcome back to the lecture. So guys, yesterday we have discussed active and passive voice remaining questions, and today we will be discussing the practice questions. Okay, we have discussed till future. I think we have covered active and passive voice in yesterday's class, and we have done them with respect to what? With respect to our tenses. Okay, done them with respect to our tenses. So today we will be starting our practice questions. This is the first practice question series, and every week on Monday, the one thing we will be doing, we will be just discussing the questions, all the previous year questions and the questions for the upcoming examinations. Okay, so let's start. In this practice questions, what I have included is, I have included the previous year paper. It's of 2021 and some are of 18 and 19. Okay, इससे पहले की भी कुछ एक आधा question होगा, but these are the questions. Okay, wherever you get confused, just go through that question paper. You will find the same question over there. So let's move forward. Okay, so these are, as written the date, it's of 2021 CHSL. This is active and passive voice. हमने अभी वही topic cover किया है, active and passive voice. So let's practice it once. So as it states, the prisoner of this jail, question number 1 देखो, यहाँ पे क्या है? The prisoner of this jail have woven these carpets. Prisoner of this jail have woven these carpets. अब जब मैंने have told you, whenever we will use what? Whenever we will use these words, have and woven. Okay. At that point of time, उसका rule क्या था? It will be converted into have के साथ में क्या आ जाएगा? Have been. Okay. अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने इस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे इस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, we have given 4 options. Okay, I have told you कि इस तरह से questions आएंगे आपके पास में, that you will be given 4 questions, and of that 4 question, 1 question and 4 parts. Of that 4 parts, you have to select which one is the correct answer. तो इसी में भी हमें वही करना है, we have to select which one is the correct answer. So let's start. यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है the prisoner of this jail have woven these carpets. Prisoner of this jail have woven these carpets. ये एक्टिव में गिवन है हमारा, ठीक है? जो हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें क्या लिखा है? सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस. अगर पैसिव में दिया होगा तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में दिया है तो पैसिव में कन्वर्ट करना है. गॉट इट? अब यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है, this is in what? It is in active voice. Okay, it is in what? It is in active voice. Just give me a minute. Yeah, let's make it a bit tidy. Okay, I prefer this pen over that one. Yeah, let's start. तो हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इट इज व्हाट? दिस इज इन एक्टिव वॉइस. अब हमें इसे पैसिव वॉइस में करना है, ठीक है? नाउ रूल के अकॉर्डिंग हैव के साथ बीन आ जाएगा, वोवन विल रिमेन सेम. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है द प्रिजनर हैव बीन वोवन बाय दीज कारपेट्स ऑफ द जेल. पहला क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो इस जेल में प्रिजनर्स है ना, जो इस जेल में प्रिजनर्स है, उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने कारपेट बनाया, ठीक है? दिस क्वेश्चन मीन्स दिस. अब अगर ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो यहाँ पे क्या है? प्रिजनर्स हैव बीन वोवन बाय दीज. ये बोल रहा है कि जो प्रिजनर्स है वो कारपेट्स ने प्रिजनर्स को बनाया. हमारे जो कारपेट्स हैं, कारपेट्स ने किसको बनाया? प्रिजनर्स को बनाया. ओके, पहले तो ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है किसी भी फॉर्म में, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, एलिमिनेटेड. अब बी पार्ट में देखो, यहाँ पे दिया है these carpets wove the prisoners of the jail. carpets, again carpets wove, क्या wove मतलब किसने बुने हैं? किसने कारपेट वोव किए हैं? कारपेट वोव द प्रिजनर्स. कारपेट ने प्रिजनर्स को वोव किया, मतलब कारपेट ने प्रिजनर्स को बनाया. अगेन गलत. सी ऑप्शन देखो, these carpet have been woven by the prisoners of the jail. have been woven. Okay, we can consider this. अब नेक्स्ट देखो,
These carpets were woven by the prisoners of the jail. अब वैसे देखो, अगर ये स्टेटमेंट बोले हमारे सी और डी दोनों करेक्ट है, पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे क्वेश्चन में गिवन है हैव वोवन। यहाँ पे हमारा बड़ा बड़ा क्या लिखा है? यहाँ पे इट इज रिटन हैव वोवन। ठीक है, जब आपके पास में हैव वोवन है तो आपके आंसर में जो भी होगा इट विल बी रिलेटेड एज पर द रूल। हैव तो नहीं जाएगा ना कहीं पे, हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें, वर वोवन, अगर यहाँ पे कहीं पे भी वॉज वर का यूज होता, ये सिंपल पास्ट में होता या फिर किसी और पर्टिकुलर चीज में होता, पास्ट में मतलब किसी भी ऐसे फॉर्म में होता जहां पे हम वॉज या वर को यूज करते हैं, ठीक है, अगर ये उसमें होता तो हम ये कंसिडर करते द कारपेट्स वर वोवन बाय द प्रिजनर्स ऑफ द जेल। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हैव बीन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हैव वोवन है। हैव किस में कन्वर्ट होता है? हमारा हैव बीन में। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? इज करेक्ट। ये जो कारपेट्स हैं दे हैव बीन वोवन बाय होम? बाय द प्रिजनर्स ऑफ द जेल। वही सेम चीज है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एंड में हम जिस वो चीज की बात हम एंड में करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल इट्स 2/3 एंड इट्स 11/x, वी क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली व्हाट वी डू इस तरह के स्टेटमेंट्स में, द वन थिंग दैट वी डू इन दिस इज कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रिजनर्स ऑफ द जेल है ना, वोवन दीज कारपेट्स, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये प्रिजनर्स ऑफ द जेल हमारा एंड में जाना चाहिए और ये कारपेट्स हमारा इनिशियल पॉइंट पे आना चाहिए। आई हैव टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग। अगर आपको नहीं भी आता एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिमेंबर कि अगर प्रिजनर्स ऑफ द जेल हैव वोवन दीज कारपेट्स तो कारपेट से स्टार्ट करेंगे। जिस भी चीज की बात हो रही है क्या करेंगे, हमारे पहले हम रिसीवर को लिखेंगे, उसके बाद परफॉर्मर को लिखेंगे। परफॉर्मर क्या है यहाँ पे? परफॉर्मर है प्रिजनर्स। प्रिजनर्स ने क्या परफॉर्म किया? प्रिजनर्स परफॉर्म्ड व्हाट? दे परफॉर्म कारपेट वीविंग एक्टिविटी। रिसीवर कौन है? कारपेट जिसको बुना गया है। तो इनिशियली एक्टिव स्टेटमेंट में हमारा क्या रहता है? पहले हमारा परफॉर्मर आता है और परफॉर्मर के बाद हम रिसीवर की बात करते हैं। और पैसिव में हमारा उल्टा हो जाता है, पहले हम रिसीवर की बात करते हैं, बाद में अपने परफॉर्मर की बात करते हैं। ओके, सो बाय दिस क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एसएससी सीएचएसएल में आया था, शिफ्ट नंबर 1 का है क्वेश्चन। जाके इफ यू गाइस हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस, गो एंड जस्ट चेक आउट दैट पेपर। ओके, काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए थे उन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। I hope this is clear. If again you people have any doubt, please let me know. I'm here just to help you. Okay, so let's see. ये question क्या बोल रहा है हमारा? The question says, disaster management team rescued the flood victims. ठीक है, disaster management team, what they did? They rescued the flood victims. तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, तो डिजास्टर मैनेज टीम और एक उसके बाद हमारे फ्लड विक्टिम्स। ठीक है, ईयर है 2021 अगेन। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखो, यहाँ पे है द फ्लड विक्टिम्स वर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। ओके, करेक्ट, रेस्क्यूड है, पास्ट में गिवन है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा पास्ट में गिवन है। द फ्लड विक्टिम्स आर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। पहले स्टेटमेंट हमारा पास्ट में, मार्कर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। The flood victim are being rescued by the disaster management team. Are being continuous activity है, still गलत, हमारे क्वेश्चन में कहीं भी continuous नहीं दिया हुआ है। The flood victim have been rescued by the disaster management team. Have been हो ही नहीं सकता, because have been होने के लिए स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होना चाहिए? Have। तो हमारे पास बचता क्या है? Were rescued हो सकता है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट किस में है? पास्ट में है। तो अगर हम सिंपल पास्ट में हम इसको कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आ जाएगा? Were। सेकंड में आर रेस्क्यूड पॉसिबल नहीं है, हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में देखो, आर बीइंग रेस्क्यूड कॉन्टिन्यूअस में चले गए, पर कॉन्टिन्यूअस के लिए ऊपर स्टेटमेंट में भी तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब डी पार्ट में जाओ, हैव बीन रेस्क्यूड है, तो हैव बीन के लिए हमारे पास सबसे कॉमन चीज होनी चाहिए हैव हमारे पास स्टेटमेंट में कहीं भी गिवन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अपना ऑप्शन नंबर ए को
करेक्ट करेंगे. ओके, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. See guys, there is some things which you can keep in mind. मतलब एक kind of short tip है. See, the very first point is, if there is a mention of have, there is mention of what? There is mention of have. It will be converted into have being. हमने हर जगह notice किया है, observe किया है, rule है हमारा. ठीक है. If the statement is what? Present. तो वो भी प्रेजेंट में ही कन्वर्जन होगा, प्रेजेंट के ही टेंस में, आप उसे पास्ट में नहीं लेके जाओगे. इफ द स्टेटमेंट इज इन व्हाट? पास्ट, देन अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट. ठीक है. हम सिर्फ उसका परफॉर्मर और रिसीवर बदल रहे हैं. ठीक है. परफॉर्मर एंड रिसीवर की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंस. हम सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग नहीं चेंज कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ऑलवेज रिमेम्बर परफॉर्मर फर्स्ट में है तो लास्ट में चला जाएगा, रिसीवर लास्ट में है तो फर्स्ट में आ जाएगा. ओके, these are the things which you have to keep in mind. And the next is rule of by. Let me just highlight this for you people. What else? Other is rule of by. One is have है तो have been में रहेगा. अगर स्टेटमेंट में हमारा हैव नहीं दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट में मेंशन भी नहीं है कहीं पे, ठीक है, तो आप अपने ऑप्शंस में से उसको आराम से एलिमिनेट करो. ठीक है, हटाओ उसको जहां पे भी गिवन है. अगर दिया नहीं है तो दिया नहीं है, आंसर कुछ और होगा. नेक्स्ट, प्रेजेंट. प्रेजेंट प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट पास्ट में, फ्यूचर फ्यूचर. परफॉर्मर इनिशियली फर्स्ट पॉइंट पे रहेगा, शिफ्ट होके लास्ट में चला जाएगा. रिसीवर सेकंड रिसीव कर रहा होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा. ओके. बाय का यूज हमेशा होगा. बाय कैसे? बाय किससे पहले लगेगा? हमेशा परफॉर्मर से पहले बाय लगेगा. किससे पहले बाय लगेगा? परफॉर्मर से पहले. ओके, नाउ लेट्स सी. आई होप दिस इज क्लियर. अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो? एक्सपेक्ट. ओके, यू कैन ओनली एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस एज दिस वन. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब देखो, इसके बाद में हमारे पास आता है सी दिस. अब यहाँ पे क्या लिखा है? द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेज इन द स्टेट टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स. सेंट्रल टीम कहाँ विजिट की? इट विजिटेड 8 विलेजेस टू डू व्हाट? टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स. क्रॉप्स को कितना डैमेज हुआ वो चेक करने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए एक सेंटर की टीम गई थी 8 विलेजेस में. द स्टेटमेंट सेज दिस. अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस. यहाँ पे हमारे पास है 8 villages had visited the central team to assess the damage to the crops. ऑप्शन 1 बोल रहा है कि जो 8 villages है ना, what they have done, these 8 villages they have visited the central team to assess the damage to the crops. They have visited what? Central team को उन्होंने विजिट किया है, क्या असेस करने के लिए कि क्रॉप्स को कितना डैमेज हुआ है. ठीक है. अब विलेजेस तो नहीं गए थे ना, villages didn't visit central team visited villages. Okay, first option is incorrect. Next, because यहाँ पे मीनिंग ही चेंज हो गया है. यहाँ पे हमारा क्या चेंज हो गया है? मीनिंग ही चेंज हो गया हमारे एक्टिव सेंटेंस का. अब नेक्स्ट देखो, 8 villages in the state were visited by the central team. 8 villages in the state were visited by the central team to assess the damage to the crops. Okay, it can be correct. ठीक है, visited है, we can use were, all the rules are applicable. Okay, so B option can be taken into consideration. Keep this in mind. Next देखो, the central team assessed the damage to the crops in 8 villages in the state. In 8 villages in the state, पहले तो the statement doesn't make sense. Central team assessed the damage. Visit कहाँ है? Assess थोड़ी किया है, they visited to ना. Incomplete statement. इस कैटेगरी में हम इसको डालेंगे incomplete. Many of you might be wondering कि जब हमें अपना ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब इट इज नियरली अबाउट, अगर हम बात करें तो हम इसको 95-100% की कैटेगरी में डाल सकते हैं. Then why we are discussing the other options? See, many of the times what happens now,
The statement that makes sense to us doesn't make sense to the question. And the next thing is the statement that makes sense to the question doesn't make sense to us. So one thing that you have to keep in mind, you read all the options, okay? Because at that point of time, what happened now, when you read all the options, हमारे पास क्या है, बहुत सारे वो हैं, like explore करने के chances हैं, okay? तो अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, अगर हम सिर्फ बी पे रहते हैं, लाइक बी तो ठीक है, टिक करो, आगे चलो, एटलीस्ट रीड व्हाट अदर ऑप्शंस आर. मे बी ये जो बी ऑप्शन है, सिमिलरली एक और ऑप्शन हो. मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, यू गेट टू ऑप्शंस, दो सेम ऑप्शंस होते हैं. दो सेम ऑप्शन जब हो जाते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे पास वो दो सेम ऑप्शन है, फर्दर ऑप्शन आएंगे कि ए एंड बी इज करेक्ट, सी एंड डी इज करेक्ट, ए बी सी ऑल थ्री आर करेक्ट, एंड ए बी सी डी ये चारों ही सही है, ठीक है. उस टाइम पे यू विल गेट सच काइंड ऑफ ऑप्शंस, ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एंड इफ यू हैवंट प्रैक्टिस दीज, इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस नहीं देख रहे हो, तो उसमें क्या होगा ना, आपको लगेगा कि आपको इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त वो चीज ध्यान में रखनी होती है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. वो इस तरह के क्वेश्चन को इलैबोरेट करके पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहा है, ओके. चलो डी पार्ट पे आते हैं. The damage to the crops was assessed in the 8 villages in the state by the central team. Damage to the crops was assessed in 8 villages in the state by the central team. अब देखो, I have told you, यहाँ पे क्या है, ये बी और डी ऑप्शन अगर हम दोनों की बात करें, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट सेज कि सेंट्रल टीम विजिटेड 8 villages in the state to assess the damage. अब यहाँ पे डैमेज टू द क्रॉप वाज असेस्ड इन 8 विलेजेस. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, 8 विलेजेस वर विजिटेड बाय द सेंट्रल टीम. हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस. तो सेंट्रल टीम यहाँ पे परफॉर्मर है, 8 विलेजेस रिसीवर है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा, 8 विलेजेस, ना कि डैमेज टू द क्रॉप्स. डैमेज इज नॉट द रिसीविंग एक्शन ना, एक्शन इज जो हमारा रिसीवर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे 8 विलेजेस है, ना कि हमारा क्रॉप्स है, ठीक है. 8 विलेजेस में सेंट्रल टीम गई थी क्या, असेस करने के लिए, वो असेस करने के लिए गई थी कि कितना डैमेज हुआ है हमारे क्रॉप्स में, ठीक है. 8 विलेजेस गए थे असेस करने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है. बट एज यू कैन सी इन डी ऑप्शन इट स्टेट्स कि डैमेज टू द क्रॉप्स वाज असेस्ड इन 8 विलेजेस इन द स्टेट बाय द सेंट्रल टीम. सेंट्रल टीम के थ्रू जो डैमेज था, इट वाज असेस्ड इन 8 विलेजेस. So this is incorrect. The option number B is correct. Okay. You have to keep in mind. अब देखो, अगर देखा जाए तो B और D दोनों सेंस बना रहे हैं, ठीक है. Both the statement will feel like okay, both are okay, both are fine. तो अब इन दोनों में से बट सेलेक्ट तो हमें एक ही करना है ना. Ultimately we have to choose one option. जब we have to choose one option, the one thing that we have to do is we have to see कि हम कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, हम कौन से ऑप्शन को टिक कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें परफॉर्मर और रिसीवर का भी तो कंसिडरेशन में लेना होगा ना, कि कौन परफॉर्मर है कौन रिसीवर है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, द ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट. ट्रैफिक पुलिसमैन find whom, find Taru for what, as she jumped what, as she jumped the red light. So this is our statement and we have to select accordingly. So let's see. Yeah, तो अब देखो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक पुलिसमैन है, उसका एक्शन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, दैट ही फाइंड तारू, ठीक है. तारू हमारी रिसीवर है और उसने किया क्या था, she jumped the red light. इसकी वजह से this particular thing happened. अब देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं. तारू has been fined by a traffic policeman for jumping the red light. Okay. Next B option states the traffic policeman was fined by Taru. Incorrect. पुलिसमैन ने तारू को फाइन किया था, तारू ने पुलिसमैन को फाइन नहीं किया था. C option states Taru was fined by traffic policeman for jumping the red light. Taru was fined by a traffic policeman for jumping the red light. Okay, it can be correct. Next states Taru is fined by a traffic policeman for jumping the red light. हमारा statement किसमें है, simple past. Fined, policeman fined her. तो past की बात हो रही है, simple past में हमारा statement, ठीक है.
अब उस अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें सिंपल पास्ट में है एंड वी हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, इज फाइंड बाय। इज हम कौन सी टेंस की जगह यूज करते हैं? प्रेजेंट। इनकरेक्ट। सी ऑप्शन में आओ। ट्रैफिक वाज फाइंड, तारू वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। Taru was fined by traffic policeman. Okay, can be taken into consideration. Was है, find है, past में. Next देखो, traffic policeman was fined, हम ये तो पहले ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं। Taru has been fined by the traffic policeman. यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम सा है has been. So when we have this has been, we have to check, do we have this has over here? No, it is not there. तो ये क्या है? Incorrect. The correct answer is what? सिंपल पास्ट कन्वर्जन इन ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो पूरा सिंपल पास्ट में कन्वर्जन किया हुआ है। तारू वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग व्हाट? फॉर जंपिंग द रेड लाइट। दिस वन इज करेक्ट। ओके, नाउ आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। या so next it states, next question states what? Next question states that Indian government has introduced a ban on spitting in public. ठीक है, बैन इंट्रोड्यूस किया है इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर स्पिटिंग इन पब्लिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैज है ना हमारा, अब हमें उस अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए स्टेट वाज बैन ऑन स्पिटिंग हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब हैज के साथ वन चीज वी विल गेट इन फ्री, व्हाट इट इज? बीन। ओके, दिस इज फ्री। अब पहले वो स्टेटमेंट देखो जिसमें हैज के साथ बीन है, दैट्स अ शॉर्टकट। लेट्स सी, हमें पता है हैज के साथ बीन लगेगा हमारा। यहाँ पे हैड बीन है पहले ही करेक्ट, वाज बीइंग है फिर करेक्ट, हैड इंट्रोड्यूस्ड है, हैड की बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे ही सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में हमारा हैज बीन है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब उसके अपार्ट भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक। ओके, has introduced what? A ban on spitting in public. अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है the ban on spitting in public had been introduced by the Indian government. Spitting in public पे जो ban है, it has been introduced what? By Indian government. Had been introduced, but statement में नहीं है, हम इसको consider ही नहीं करेंगे। Next देखो B option it states was being introduced. ठीक है, being है मतलब progressive का form है कोई, पर progressive की बात ही नहीं हो रही है। Again हटाओ, the Indian government had introduced a ban on spitting in public. Had introduced a ban on spitting in public, बात किसकी है? Has. Again हटाओ, a ban on spitting in public has been introduced by what? By whom? By the Indian government. So option number D is our correct answer. Okay, I hope this is clear. Let's move forward. So the next statement is question number 7. Let's see this. The maid was dusting the hall when the doorbell rang. Maid was doing what? Maid was dusting the hall. It is question number 6. Kindly just correct it down. Right. Minor calculation mistake. Not calculation mistake, minor mathematical mistake. Okay, yeah. This is question number 6. Okay. So the question number 6 states what? That the maid was dusting the hall when the doorbell rang. जब डोर बेल बजी उस टाइम पे मेड क्या कर रही थी? शी वॉज डस्टिंग द फ्लोर। पास्ट में है और आईएनजी है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोग्रेसिव में। तो व्हाट इज दिस? पास्ट प्रोग्रेसिव। ओके, अब रूल क्या था? आईएनजी के साथ क्या लगेगा? बीइंग लग सकता है। वन चांस, लेट्स सी हमारे कौन कौन से ऑप्शन है। इट स्टेट्स व्हाट? हमें पता है आईएनजी के साथ बीइंग लगेगा, तो पहले हम वही से एलिमिनेशन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर पा रहा है। रैंग, द फर्स्ट ऑप्शन स्टेट डोरबेल, द डोरबेल रैंग बाय द मेड व्हेन द हॉल वाज डस्टेड, नॉट पॉसिबल। बी ऑप्शन स्टेट्स डोरबेल रैंग व्हेन द मेड इज डस्टिंग द हॉल। अगेन वी हैव टू सर्च फॉर व्हाट? बीइंग। बीइंग देखो कहां पे? द डोरबेल रैंग व्हेन द मेड वाज डस्टिंग द हॉल। सी ऑप्शन स्टेट्स द डोरबेल रैंग व्हेन द हॉल वाज बीइंग डस्टेड बाय द मेड। So D option is the only option जहाँ पे was being dusted है. You don't have to go for second thoughts.
move forward. There is no need of second thoughts in such questions. आपको पता है हमारे पास क्या है. Narrow it down. कितना narrow आप कितना कर सकते हो? See, when you start narrowing the questions down, उसमें you will be left with what? You will be left with either two options. और अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है, 3 options. ठीक है, एक तो तब भी eliminate हो जाएगा. अब 2 options बचेंगे, और अगर आप काफी लकी हो तो एक ही बचेगा, जैसे कि इसमें हमने देखा वॉज डस्टिंग है. वॉज डस्टिंग हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव का पार्ट है. जब हम कन्वर्ट करते हैं अपने पास्ट प्रोग्रेसिव को एक्टिव टू पैसिव फॉर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाता है? बीइंग आ जाएगा. ठीक है, आईएनजी को हटा के हम वहां पे बीइंग लिखते हैं. ये हमने अपने क्लास में किया है. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट ना, गो एंड वॉच दैट लेक्चर ऑन 1.5x स्पीड. ओके, इससे जल्दी कवर हो जाएगा. नाउ वी विल लेफ्ट विद जस्ट ऑप्शन नंबर 1. सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 रह गया है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन इज व्हाट? इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पे करेक्ट है. नाउ यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन जहाँ पे आपके पास 3 होंगे, वहां पे आपको फिर सब अप्लाई करके देखना पड़ेगा. जहाँ पे 2 होंगे अगेन सेम. और 2 में क्या है, आप उस एक पर्टिकुलर लेवल तक आप उसको नैरो कर पाए, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट ट्रिक्स यू हैव टू यूज. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1, जैसे कि एक बचेगा, जैसे कि इसमें था, हमें पता था कि बीइंग आएगा. देख लो कौन से स्टेटमेंट में बीइंग है. मूव फॉरवर्ड. ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, रीड ऑल एंड देन मूव फॉरवर्ड. ऐसा नहीं है कि बस देखना है कि हाँ यहीं पे है, बाकी पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कहाँ पे है. ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is our actual question number 7. So what this question states? The question states the government is helping the states affected by cyclone. Government is what? The performer. Perform क्या कर रही है government? Help दे रही है किसको? States को. What? Which are affected by cyclone. जो cyclone से affected states हैं, government उनको help कर रही है. Okay. Now let's see. Government is helping the states. Helping is helping है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? When it comes to helping, present progressive की बात हो रही है. यहाँ पे इसकी बात हो रही है, present progressive. See, very first thing that you can do ना, अब चाहे फिर वो present perfect progressive हो, या फिर present progressive हो, past perfect progressive हो, या फिर past progressive हो, if you have is MR के साथ ing, okay, या was were के साथ ing, was were के साथ में क्या mentioned है? Plus ing, or you have what? You have is am are के साथ what? ing. Then there are things that you have to keep in mind. उस time पे the one thing that will be common is being. Here also being. So again check for the statement being. अब देखो कहाँ पे स्टेटमेंट में हमारी बीइंग है, देखते हैं. पहला ऑप्शन से गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन. गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प व्हाट? दो स्टेट्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन. ओके, देयर इज नो बीइंग. तो नेक्स्ट देखते हैं. द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, देयर इज दिस वर्ड. वी कैन कंसीडर दिस बी ऑप्शन. नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेट्स द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन विल बी हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, अगेन नो बीइंग. The state affected by the cyclone will have been helped by the government. Again, ऑप्शन में have नहीं है हमारे स्टेटमेंट में, तो have से तो वैसे भी कैंसिल. यहाँ पे helped नहीं है, helping की बात हो रही है, और यहाँ पे will के साथ आपने लगाया फ्यूचर स्टेटमेंट है, प्रेजेंट स्टेटमेंट है. ये फ्यूचर है एंड दिस वन इज व्हाट? गवर्नमेंट इज हेल्पिंग. दिस इज प्रेजेंट, कंटिन्यूअसली चल रहा है. ठीक है, गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट? गवर्नमेंट इज हेल्पिंग. तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है. बी में हमारा बीइंग गिवन है, तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर. सो और करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, नैरो डाउन कर लिया हमने. इतना ज्यादा कर लिया है कि हमको पता चल गया है कि हाँ, अगर आईएनजी है और आईएनजी के साथ हमारा अगर आईएनजी है और आईएनजी के साथ हमारा इज एम आर है, ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? विल कन्वर्ट इट इनटू, वेरी फर्स्ट थिंग इज बीइंग. ओके, तो यू हैव टू चेक फॉर दिस बीइंग. कि आईएनजी को हम बीइंग में लिख देंगे. आईएनजी ये वाला, जो ये वाला आईएनजी होगा, ये बीइंग के आईएनजी में चला जाएगा. ओके, दिस आईएनजी विल गो टू व्हाट? बीइंग आईएनजी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ
Let's move forward. B option is the correct answer. Let's see our next question. Okay. Still guys, this is 2021 का क्वेश्चन पेपर है जिसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट शिफ्ट हमको डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी कि हर शिफ्ट में हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. हर शिफ्ट में ये टॉपिक से you can expect 2 to 3 questions at least. Okay, so you have to practice it accordingly. Now let's see question number 8 straightforward. Anant like experimenting with different cuisines. Anant को क्या पसंद है? He likes experimenting. Anant is quite an experimenter. So he likes experimenting with different cuisines. यहाँ पे हमारा experimenting है ing again being. Now let's see. Different cuisines are being experimented with by Anant. The statement stays. Next is statement which says what? Anant had liked experimenting with different cuisines. Okay. Experimenting with different cuisines is liked by Anant. Okay. Different cuisines like experimenting with Anant. गलत. Different cuisines को अनंत के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज गलत. Different cuisines are being experimented with by Anant. Statement doesn't make sense and it's incorrect, inappropriate, wrong. We are left with option number B and C. Anant had liked. There is no such thing which is known as had. हमारे statement is in present. Okay. Experimenting with different cuisines is liked by Anant. अब यहाँ पे experimenting है, हमारे पास ing की जगह being नहीं है. Okay. This statement is correct. अगर हम यहाँ पे different cuisines are being experimented by Anant, that can be one of the options. जो एक और valid option इसका हो सकता था. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि experimenting with different cuisines is liked by Anant. Okay. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा देखो you will say कि अभी तो आपने बोला था कि ing के साथ में हम being लगा देंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं. तो यहाँ पे हमने ing को हटाया भी तो नहीं है ना. अगर हम ing को हटाते, ये experimenting का experimented कर देते, this experimenting, if you would have converted into experimented, and then we have like applied ing rule, that is being experimented. Okay, then we can say कि हाँ वो correct होता. Experimented के साथ being हम use कर लेते तो correct होता, because if you go through the last statement, the previous question that we have done, यहाँ पे क्या है? इस helping के साथ में हमारा क्या है? जो हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का, या सो जो हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन, तो इसमें क्या है? इट स्टेट्स बीइंग हेल्प्ड. ओके, इट नोवेयर स्टेट्स, व्हाट इट नोवेयर स्टेट्स कि यहाँ पे जो हमारा है आर हेल्पिंग. ओके, बट यहाँ पे अगर हम बात करें अपने इस वाले क्वेश्चन में, अनंत लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, वी हैव नॉट कन्वर्टेड इट, वी हैव जस्ट चेंज इनटू एक्टिव एंड पैसिव. हमने परफॉर्मर को रिसीवर की जगह रख दिया एंड रिसीवर को परफॉर्मर की जगह रख दिया. दैट्स ऑल. परफॉर्मर यहाँ पे अनंत था, वो क्या कर रहा था? एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिफरेंट क्विजीन्स के साथ. तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट क्विजीन्स को पहले रख दिया, अनंत को बाद में रख दिया. ओके, दैट इज द अगेन वन थिंग. So it is not true that you will get this beautiful word everywhere. You will get being everywhere. Okay, if you think so, then it's incorrect soch. Okay, so what the thing is, it is not true you will get being everywhere. What you will get is, you can get certain question like this as well. So don't get confused. Go through उसको अच्छे से read करो options को, and you will find one जहाँ पे वो उसका form change नहीं हुआ होगा. It will be just converted into passive voice. Okay. Now let's move forward. Next, question number 9 states what? Special business will ferry students, special buses will ferry students to their colleges. Special buses हैं जो students को उनके colleges तक लेके जाएंगे. Okay, that states that. अब देखो question number 9 के accordingly, we have to choose one statement. ये किसमें हमारा future में है, will mention है, will हमारा future का part होता है. So as it states that special buses will ferry the students to the college. Okay, अब देखो
ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं हम, स्टूडेंट्स आर टू बी फेरीड टू देयर कॉलेजेस। अब जब हमारा ऑप्शन ही किसमें है, फ्यूचर में, तो इट इज इनकरेक्ट। आर बीइंग फेरीड, अगेन इनकरेक्ट। हैड बीन फेरीड, अगेन इनकरेक्ट। क्या है हमारा, विल फेरी। डी ऑप्शन सेज स्टूडेंट विल बी फेरीड टू देयर कॉलेजेस बाय द स्पेशल, अगेन करेक्ट। एक ऑप्शन बचा, नैरो इट डाउन। 4 थे, 4 में से हमारे पास खाली एक बचा जो फ्यूचर में था, तो दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। सिंपल, इजी, hardly took 10 to 12 seconds. Okay, you have to keep in mind कि आप जो अपने statements है ना, उनको इसी तरह से मतलब check करो। and next thing you have to do is you have to try कि आपका जो time है वो बचे, because question paper is lengthy. Okay, when the question paper is lengthy, आपके पास में इतना time नहीं बचता है कि आप detailed by detail जाओ, ठीक है। you have to keep in mind जो बेसिक रूल्स है उतना लिखो। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरा एग्जाम होता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जो भी मेरे क्वेश्चंस होते थे ना, फॉर एग्जांपल लेट्स, अगर मेरा रीजनिंग है, ठीक है, तो इट इज समथिंग व्हिच आई फील लाइक आई एम नॉट सो गुड एट। ओके, क्वांट एंड रीजनिंग आई एम नॉट सो गुड एट। सो वन थिंग दैट आई यूज्ड टू डू कि व्हेन आई यूज्ड टू गेट माय क्वेश्चन पेपर, the one first thing is I used to write everything. For example, that A B C D A to Z हम लिखते हैं alphabet and उनका order, I used to write it on the corner so that end में क्या होता है ना, वो time बचता है। You will get 5 to 10 minutes when you read the question paper, fill your OMR. At that point of time you should do this. Okay, you just write all the things at the back कि हाँ अगर ये पर्टिकुलर चीज है, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। बिकॉज फिर क्या होगा, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज भी होगे ना, यू कैन गो थ्रू दिस शीट अगेन and you will feel like कि हाँ ये जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं they are helpful, and somewhere if you find कि हाँ this is the one particular thing which I cannot recall, तो अपने पेपर से just एक सेकंड पहले, अंदर जाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले रीड इट। OMR मिलते ही उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एट द बैक जो रफ शीट होगा वहां पे लिख देना। सो सिंपल। ओके, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ रफ पेपर ना, हमेशा रफ शीट मिलता है, तो जस्ट राइट इट डाउन अपने रफ शीट पे, ये है पॉइंट्स। स्पेशली रीजनिंग और क्वांट में फॉर्मूलाज लिख लो इधर, तो जब सॉल्व करो तो प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, दीज आर द ट्रिक्स दैट आई यूज्ड टू फॉलो, आई थिंक हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। You can see vast valleys sloping into the distance. You can see what? You can see vast valleys. Vast valleys are sloping into distance. Okay. अब देखो यहाँ पे है vast valleys had been sloped into the distance. Vast valley क्या हो गई? They have been sloped down into the distance. Next, B states vast valley will be sloping into the distance. अब यहाँ पे है sloping into the distance. उस अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। विल की बात नहीं हो रही है, अगेन हटाओ, पास्ट की बात नहीं हो रही है, रिमूव इट। अब यहाँ पे सी ऑप्शन सी, वास्ट वैली आर सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, एंड डी ऑप्शन सेज वास्ट वैली कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। ओके, यू कैन सी है तो हमें कैन देखना है अपने कौन से स्टेटमेंट में है, सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर डी में वी कैन सी कैन, सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैन बी सीन, यू कैन सी, vast valley sloping into the distance, vast valley can be seen sloping into the distance. I hope this is clear. Okay, now ये हमारा आज का एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। we have picked 20-21 questions, and next हम क्या करेंगे, एक एक ईयर बाय ईयर हमको, like अभी we have done 2021, next Monday we will be doing 2020 and so, ठीक है। तो हम बैकवर्ड्स चल रहे हैं, लोग फॉरवर्ड्स चलते हैं, हम बैकवर्ड चलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एक्टिव एंड पैसिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू द सेम, लेट मी नो। ओके, सो नाउ कम्स द क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। हमने पहले भी क्लोज कॉम्प्रिहेंशन किया है व्हेन वी हैव डिस्कस्ड द सीडीएस क्वेश्चन पेपर, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड सीडीएस 1 2021, ठीक है, और 2022, या एट दैट पॉइंट वी हैव डन क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। Now let's see, आपने क्लोज कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या करना है। यहाँ पे देखो, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि आपको अप्रोप्रिएट वर्ड फिट करना है इस फिलअप के अंदर। क्या फिट करना है? अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट वर्ड आप कैसे चूज करेंगे? लेट्स सी, द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव। जो होटल था वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। अब देखो, जब व्हेन आई टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, जैसे कि यहाँ पे है तो होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे
पूछा है इसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे हमें दिया है हर जगह क्वेश्चन मार्क है, तो इट मींस इट्स अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क आएगा इसके बाद में, ठीक है, ये क्वेश्चन की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, द स्टेटमेंट इज दिस, यू हैव टू फिल दिस। अब जब यहाँ पे वॉज है, वॉज नॉट है, तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे। वॉज इट, हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं ना, ज्यादा महंगा नहीं था, नहीं था ना, तो वॉज इट, तो ये वॉज इट है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज नॉट टू एक्सपेंसिव आता तो यहाँ पे होता इज इट। ओके, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, वॉज नॉट इट नहीं होता, यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू शो व्हाट इन दिस स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है कि ये क्वेश्चन फॉर्म में हमारा द होटल वॉज टू एक्सपेंसिव, अगर यहाँ पे वॉज टू एक्सपेंसिव आता, द होटल वॉज टू एक्सपेंसिव, अगर ये होता हमारे पास, तो हम इसमें क्या लिखते, वॉज इट या वॉजंट इट, वॉजंट इट। ओके, द होटल वॉज टू एक्सपेंसिव, वॉजंट इट, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वॉज इट। सिमिलरली अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें, लाइक ह्यूमंस zoo animals must have a dentist dash their teeth. ओके, ह्यूमंस की तरह जू एनिमल्स के पास भी एक डेंटिस्ट होना चाहिए, डैश देयर टीथ, उनके टीथ में डैश, अब क्या है ऑप्शन नंबर, फिल देयर टीथ, फिल्ड देयर टीथ, फिलिंग देयर टीथ, एंड टू बी फिल्ड देयर टीथ। लाइक ह्यूमंस, अब हम इसमें ऑप्शंस अपने एबीसीडी को फिट करके देख लेते हैं, दिस स्टेटमेंट मेक्स द वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंस। ओके, लाइक ह्यूमंस zoo animals must have a dentist fill their teeth. Okay, now like humans zoo animals must have a dentist filled their teeth. B option states this. C option states like humans zoo animals must have a dentist filling their teeth, filling their teeth, must have a dentist to be filled their teeth. Dentist to be filled their teeth मतलब डेंटिस्ट को उनके दांत के अंदर थोड़ी फिल करना है। अब मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिलिंग देयर टीथ, जो उनके डेंटिस्ट जो है उनका टीथ क्या करे, फिल कर सके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द वन मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। ओके, बाय दिस वी केम टू द कंक्लूजन व्हाट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब अगर हम बी और ए की बात करें, मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिल्ड देयर टीथ, ऑप्शन नंबर बी डजंट मेक सेंस। ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए आल्सो डजंट मेक सेंस, तो फिर क्या करेंगे, वी विल एलिमिनेट दीस एंड वी विल बी लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी। अब लेट्स सी in this part, question number 3 में अगर हम देखें, it says it is very kind of you to do the washing up, but you dashed it. It is very kind of you to what? To do washing up. Very kind of you to do washing up, but you dash it. Okay, अब उस according हमें fill करना है। It states, option number A में देखो अगर, it states you didn't have to do it. Okay, next states you hadn't to do it. C option state you might not have done it, and D option state you must not have done it. Okay, when we use must ना, if हम must करते हैं तो it is a kind of obligatory, कि हाँ तुम्हारा बहुत, it was very kind of, ठीक है, is obligatory, तो it is very kind of you कि तुमने सफाई कर दी, but you must not have done it, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे बोल रहा है he went dash sea alone, he went dash sea alone, he went in the sea alone नहीं, he went to the sea alone, वो अकेला चला गया, he went where, he went to the sea alone, हम ऐसे बोलते हैं ना, he went to the movie alone, वो अकेला मूवी देखने चला गया, तो what is it, प्रपोजिशन का यूज करेंगे हम, what, he went to the sea alone। Now comes to question number 5. Just give me a minute. Huh? Yeah. So question number 5 states this. The dash of our civilization from an agricultural society to today's complex industrial world was accompanied by war. आज तक की हमारी सिविलाइजेशन जो है एग्रीकल्चरल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में कन्वर्जन जो है was accompanied by what? By war. War ने accompany किया। Now let's see. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एडजस्टमेंट, द एडजस्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, एडजस्टमेंट नहीं बात कर रहा है, ये चेंज की बात कर रहा है,
अब हमें चेक करना है कि कौन से वर्ड का मतलब क्या है, चेंज है। अब अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें, एडजस्टमेंट का मतलब चेंज कहीं पे भी नहीं होता। माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट, अगेन नहीं। यहाँ पे है राउट का मतलब है, राउट हमारा नहीं है, तो राउट का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, ठीक है, वो भी नहीं है। नेक्स्ट देखो मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, चेंज इन अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस इज चेंज इन अपीयरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, इट इज व्हाट, इट इज ऑप्शन नंबर डी। Now listen, the very first thing you will be having a doubt about in this question, okay, that can create doubt, I must say, it is कि ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमें सेंटेंस को वो करना था, बट इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस ही एकदम डिफरेंट है अकॉर्डिंग एज पर द क्वेश्चंस वी हैव डन इन क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। या तो हमें उसमें प्रेपोजिशन फिल करने के लिए बोलता है, या तो उसके अंदर हमें कंजंक्शन फिल करना होता है, या तो एडवर्ब फिल करना होता है, तो एडजेक्टिव फिल करना होता है। ओके, तो ये कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट है। वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको 4 डिफरेंट वर्ड देंगे, ठीक है, 4 डिफरेंट वर्ड देंगे, और जब वो वर्ड दिए होंगे आपको क्या करना है, उनमें से एक अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है जो कि स्टेटमेंट को फिट करे। अब वो 4 डिफरेंट वर्ड ये नहीं होंगे, डिडंट हैव टू, इन टू, ऑन, ये नहीं होंगे। द 4 डिफरेंट वर्ड भी वोकैबुलरी वर्ड्स, ओके, ये vocab words होंगे, and these vocab words you have to solve what, you have to know the meaning। आपको अगर उनका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एज पर मी इस क्वेश्चन के अंदर मेटामॉर्फोसिस का वर्ड अगर 100% स्टूडेंट होंगे तो उनमें से मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 30% को पता होगा, तो रिमेनिंग 70% विल, there are high chances कि वो इसको इनकरेक्ट करेंगे। इधर they'll choose adjustment, they'll choose migration, और they'll choose the route, ठीक है। बट मेटामॉर्फोसिस बहुत रेयर लोगों को पता होगा। इट्स अ साइंटिफिक टर्म ऑफ कोर्स, ठीक है। तो द थिंग इज कि इस तरह के क्वेश्चंस आर व्हाट, यू कैन आल्सो एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड एक्सपेक्ट व्हाट, आते क्या है, आते ही हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन की बात क्या है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, you will see such kind of question, I'll say, you will see। So before like solving such questions, one thing you have to make in mind कि आपको इनमें से या तो एक वर्ड का मतलब पता होगा या तो 2 वर्ड का मतलब पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जहां जो vocab से रिलेटेड है एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू ओवर हियर इज लीव इट, मूव फॉरवर्ड, ठीक है, लीव इट एंड मूव ऑन। गिव योर, I'll say 2 minutes ब्रेनस्टॉर्मिंग में दो, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, ठीक है, मैक्स 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग में दो। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है लीव इट एंड मूव ऑन, बिकॉज हर डिक्शनरी का वर्ड आपको पता हो ये कहीं भी नेसेसरी नहीं है। इफ यू नो इट, इफ यू कैन फील लाइक कि हाँ ये मुझे माइग्रेशन नहीं हो सकता है, इसमें माइग्रेशन की बात नहीं हो रही है, रूट की बात नहीं हो रही है, एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, तो मेटामॉर्फोसिस की बात हो सकती है, then do it। if you are not sure at all, you are not aware of the word, तो उसके बाद में क्या करो, छोड़ दो उसको, ठीक है। I hope this is clear, because the students many times इनका vocab उतना strong नहीं होता है, and that's true, हर किसी का vocab strong नहीं होता है, मेरा भी कभी कभी नहीं होता है। तो the thing is at that point of time you should leave it, okay। अब now we have questions as if, just give me a minute, okay। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस है। It says कि आपके पास में ब्रीफ पैराग्राफ्स हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन था जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन है, 2012 से आप बेसिक पैराग्राफ था इसलिए मैंने उठाया ये, ठीक है, अच्छा सिलेक्टेड है। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट यू हैव 2 ब्रीफ पैसेजेस, इसमें एक कॉन्टिन्यूएशन में एक और पैसेज था, एंड यू हैव 10 क्वेश्चंस in passage 1 and 5 questions in passage 2। अब questions from passage I find them quite scoring। क्यों they are scoring? क्योंकि आंसर आपका पैसेज में ही है, ओके। अगर वो comprehension based question है, अगर वो ये पैसेज है तो it's quite a different thing। Please read carefully and fill up the blanks with suitable words।
out of 4 alternatives given. आपको ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है and you have to select the suitable words. अब you will be seeing कि यहाँ पे हमारे if we see in our line number 3 this 481 लिखा है यहाँ पे and at the end is 82. ये आपके पास questions है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 and 90. These are the blanks. Okay. These are what? These are the blanks. ये हमारे में ब्लैंक के फॉर्म में हमें गिवन होगा एंड अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, हमें उसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट्स सी, जस्ट लेट मी अंडरलाइन दिस सो दैट थोड़ा इजी रहे मेरे लिए आपको एक्सप्लेन करना. ओके, अब देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे है हमारा पेरेंट्स टेंड टू स्पॉइल देयर ओन चिल्ड्रन ईदर बाय ओवर इंडल्जेंस और बाय डेप्रिवेशन. पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं या तो ओवर इंडल्ज होकर उनके साथ या फिर बाय डेप्रिवेशन, या फिर कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, डिप्राइव करते हैं हमको. चिल्ड्रन शुड बी 1 चम्मच. Just give me a minute, please. Yeah, just hold on, guys. Okay. तो यहाँ पे हमारा क्या था, या तो हमारे पास में था that parents tend to spoil their own children either by overindulgence or by deprivation. Children should be the time for 81. This is our first part. ये first blank है हमारा. From primary selfishness to sharing, for learning to dash with deprivation and disappointment, and learning to dash failure since breaking a toy and forgetting a homework assignment are dash serious than breaking a marriage or forgetting to prepare for career advancement. ठीक है. But 85 यहाँ पे हमारा है deprivation as is common in dash families leave many children dash the stage of personal gratification. They lack resources for developing a sense of dash towards other and a wish to care for them. And children dash be poor to be underprivileged. The dash are also deprived, cheated out of learning how to face life. Okay. So this is it. ये हमारा children और marriage के ऊपर है. Effect of marriages on children. ठीक है, बोल सकते हैं. ठीक है, पेरेंट्स जो हैं उनका क्या इफेक्ट है अपने चिल्ड्रन के ऊपर. ठीक है, अब देखो आई हैव यूज्ड डैश अ लॉट ऑफ टाइम बट इट इज आई हैव टू यूज. ओके, इफ आई से 80 to 83 ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे अब देखो हमारा 81 जो पॉइंट है इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है. लेट्स सी, या दिस इज व्हाट वी हैव. '81 में हमारा ऑप्शन नंबर ए इज चेंजिंग, बी इज टर्निंग, सी इज शिफ्टिंग एंड डी इज रिमूविंग. ए है हमारा चेंजिंग, बी है हमारा टर्निंग, सी है हमारा शिफ्टिंग एंड डी इज रिमूविंग. अब देखो एज पर वी हैव टू गो बैक टू आवर पैराग्राफ टू रीड इट. ओके, सो लेट्स गो बैक. इट स्टेट्स व्हाट Parents tend to spoil their own children either by overindulgence or by deprivation. Parents क्या करते हैं, अपने children को बिगाड़ देते हैं. कैसे? या तो overindulgence से या तो deprivation से. Children should be the time for dash. अब dash में हमारा ये जो 81 के हमारे options है, should be time for changing, turning, shifting and removing. यहाँ पे हमारा option number A आएगा for changing from primary selfishness to sharing. Change हो रहा है primary selfishness से शेयरिंग में, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन. अब देखो आगे बोल रहा है फॉर लर्निंग टू डैश, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, तो यहाँ पे है पेरेंट्स टेंड टू स्पॉइल देयर ओन चिल्ड्रन ईदर बाय ओवर इंडल्जेंस या
तो ये शिफ्ट हो रहा है ना कि चेंज हो रहा है. दिस इज शिफ्टिंग. दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर शिफ्टिंग. शिफ्टिंग फ्रॉम व्हाट? करेक्टेड. शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी सेल्फिशनेस टू शेयरिंग. शिफ्ट कहां से कर रहे हैं? सेल्फिशनेस से शेयरिंग में. ओके, दिस इज द शिफ्ट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम. तो ऑप्शन नंबर 81 का हमारा आंसर होगा सी, दैट इज शिफ्टिंग. अब देखो आपको आंसर्स ना इस फॉर्म में मिलेंगे. एक पैराग्राफ मिलेगा. आई हैव copied it directly from the question paper. You will get the paragraph, and from this paragraph what you will see? You will get such points. ठीक है, एक पैराग्राफ पूरा ऐसे लिखा होगा. This will be the form of paragraph. Yeah. And there will be given 81, A option this, B option this, C option this, D option this, 82, A, B, C, D. जैसे यहाँ पे given है. Okay. So option number 81 answer will be C. Now let's move forward to 82. For learning to dash with deprivation and disappointment. Okay. For learning to what? It states learning to what? Learning to cope up with deprivation and disappointment. Learning to cope up with deprivation and disappointment. To option number 82, the answer will be D. And next comes option number 83. अब यहाँ पे देखो 83 में क्या है? For learning to dash failure since breaking a toy and forgetting a homework assignment. यहाँ पे I'm writing it 82. Learning to with deprivation and okay and disappointment, and learning to dash failure since breaking a toy. I know it's quite difficult to just shifting the slides. Okay. अब 83 में हम देखें तो हमारे पास में क्या है? Learning to overcome. Overcome किस चीज से? Since breaking a toy and forgetting a homework assignment. Learning to overcome failure. Failure को overcome करने के लिए option number 83, A answer is correct. Okay. तो ये जो पैराग्राफ है आपका, इसमें इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे. It's quite a difficult thing for me. I will share the slides side by side tomorrow. You can expect such kind of questions from this. You will be getting ऐसे A, B, C, D वाले options, and then you have to keep in mind. अब as we can see कि यहाँ पे भी I am also getting confused in the paragraph. Similarly, you have to also choose it accordingly. If you are doing this paragraph, अब आपने इसमें क्या करना है ना? मैंने आपको बताया था, आपको चेक करना है कि प्रेजेंट ये किस फॉर्म में लिखा गया है. ठीक है, किस टेंस में लिखा गया है, और उस अकॉर्डिंगली हमें अपने सारे आंसर्स भी चूज करने पड़ेंगे. ठीक है, तो यू विल टेल मी कि जो पैराग्राफ है ये किस सेंस में लिखा गया है. ओके, एंड टुमारो वी विल बी सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस. I'll try. I have just given you an idea कि इसमें जो ऑप्शंस है वो इस फॉर्म में आएंगे. 81, 82 इस फॉर्म में आपको एग्जाम्स में मिलेंगे. I will incorporate them over here itself. Okay, so you have a rough idea कैसे क्वेश्चंस आएंगे. So guys, that's all for today. Tomorrow we will be discussing this comprehension, and after that, not in tomorrow but in the tomorrow itself we will discuss this comprehension. We will take our next series tomorrow itself, and after that we will be starting with our next topics. Okay, that's all for today. I hope you guys have grasped everything I have taught, and if you have any doubt, if you didn't understand anything, please let me know. Okay, that's all for today. I'll see you people tomorrow at the same time, 10 a.m. Okay, have a great day ahead, and that's all. Keep practicing.